Kapang ni takutai bukukchong je tabuk Bharat bai Pakistan coba nanglai tongmani obri update na thangtini o Tripura bai belai ke kotor kerenjak kok toma kasai phaika belai ke kirima singsa wana ma singsa kaisa kok toma o jorani kok no sara thanga Bharat bai Pakistan ni coba asuk unglai yaku huni himpano ba khemala ya unglai tong himpano kebora coprok trino Bharat itu khakti katam kata isi coprok nani to tiar kere kintu Pakistan ni kono guarantee kere awi jekon time coprok man huninyai yang o tiar tonglai tongo sini Bharat hano merengai nai mathang bodol BSF CRPF joto sengkrak jawan ro a jorawono tini kaise video lukurong nubes no phaiso paika mantri bakrok Narendra Modi Bayu Sena hekaba Air Force ni je camp ba inko Air Force ni je khola birkhung khola o thangai malai kha mantri bakrok Narendra Modi Bayu Sena ni borok bai Air Force rok bai balai ke khatong laijak balai ke sikla rok ni kha thon laijak je Bharat hano mothana bagi langma reimano am haker bini tong thong laijak ni mangpli kasai pheka tini ni mangpli o mantri bakrok Narendra Modi ni thangai manjak mani o khatong laijak tabu Air Force ni adong ro nai jobani kisa mangpli apni agulo saikhnaro je Bharat no coprod na bagai Pakistan ro tabuk ISI rohorjak Bangladesh ro 10 jona hnibo tabuk social media o viral ni tongo tai o je home department bakhaktei no Tripura no kora nozor narmani bagini saklai rejak jetike ISI ro Bangladesh tei je Tripura no corridor khlai bane hamani doglam khlai mai ati khlai nai nai ni khabani tangde bukukchong যে ত্রিপুরা তাবুক বাংলাদেশ তুই খাইনাই অন্য রাষ্ট্র রক চক্রক মানে বাগি বক করিডোর মি দং মুগাকে সুতাংনি সিমি বমাহাই করিডোর চুম দংই দং সুতাংগো বাহিনা বাংলাদেশি রক রাজা সায়াতি হাবুই তাবুকে কোপলুং আবুগিনাই কাইসা রিপোর্ট বাহিনা আংকিনি রক ফুরুকনাই বেবা থুমুই আকইনো ফিয়াবা tabuk phajike puya nai pegrani mantri bakrok Narendra Modi je visit khlaimani Air Force ni inko birkhung kholao tai kaisa angkangke hasteni montrokra Dr. Manik Shah bahine saikhna rakha je o Tripura o border o krak nai masang khlaijali tongo ekdom kaisana pano map khlaijai gya raja sayamanja khangkeno romnani tai jodi keu mani eke koknani khlaine krak nai masang khlaijak je jagao কনি বখাতে কেন্দ্রনি বখাতে হোম ডিপার্টমেন্ট বখাতে সাকলাই জাখা বাংলাদেশ 10 জনা আইএসআই রহরজাক পাকিস্তানি বলংনি বড় ও 10 জনা তাবুক ত্রিপুরাতি হাবই 12 জন অ্যাটাক খাজিনি বাগै জুটিলি স্নামই দङ नि माने कगनो खनावै नाय टिआर बसुक दं माने तावनि माखुबो भारत माता की भारत माता की भारत माता की खापांनि ताखदे बुखुकचंग नरक नखना मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी जे ताबक एयर फोर्स बै माने एयर फोर्स बलाय खातुं लाइजाक टियार नang लाइजाक बखाओ चबानि बागिनाय समाय तांजाक आबानि मांप्लि नुजाखा ताइ मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक शाह हायो त्रिपुरा न गराक नाय बथै रै तंग हुरि सावनि हिपानो सय कक सानानै थांगांके जोंजाल बो जागाव नाय खापानि ताखदे बुखुकचंग किरिनानि बो जागाव किरिनानि जागांखा जों ताबक साबै जबा खालायदों भारत पाकिस्तान ताबक सरकार नाङै थाका बलंनि बररक बा टेररिस्ट नरनानि बागै भारत आक्रमण खालायमासे पाकिस्तान निके सरकारनि निसे बरके भारत न यासगै जुद्ध खालायदों सिबो अमाहाय अवस्था अमाहाय जराव बाबासा फासिं पाकिस्ताननि जे जवान रक से भारत जवान नांलायो ताइ कैसे जे पाकिस्ताननि टेररिस्ट बरक बाहायनो भारत ना हमला खायनि चुक्ति खायनि दङ जा आबनो जे होम डिपार्टमेंट बखाक्तैनाय ताइ जे गोयेन्दा बेरेक नि बखाक्तै सेंट्रल जे आईबी नि बखाक्तैनाय ओ जे 10 जना ताबुक आईएसआई नि बर बांग्लादेश तंगतैनाय भारत हाबै चक्रमना बागै करिडोर माने हाबनानि जागा खाय दङ माने अ कग्न बुसुतकिरि थाय नर सिरि कमेन्ट ताइ बुसुतिया दं यांग भारत नि बखाक्तै यांग नायकल मुं बुसुतनि दं yang rogo je tabuk Pakistan ni Srinagar ni je border ba Kashmir ni border je dikhe how you see to that thing
না, কালকে তো আমরা অলরেডি we have already uh, watched the TV for the address of our honorable Prime Minister. He already categorically he has already mentioned that the operation Sindoor has not been closed. It will remain open and it depends upon the Pakistan's activity. If there is any attack further, then we also will do the same. Sir, today you said that the cases of infiltration has increased by 18% and something other. How do you see the new pattern we have seen using Tripura as a corridor to move to the mainland India, and on the other side from Nagaland, lot of arms are coming to Tripura. So is it a matter of worry? No, there is always worried, but we are worried about that. That the arms should not enter our Tripura state, and for that, whenever it comes, we usually what happens, our police already address it, and they recover those arms and ammunition. And so far, this law and order situation, we are very much careful. Our police department, they are very much careful, and we will not allow anybody who will disturb the peace and tranquility of Tripura. Sir, Hingga ekhaban taদের bukuk chong o kok thai dongni ka Bangladesh tui je raja sayati borok habmani abuni bethai bai no chung tabo kirna nangi tongo chung wan sulai tongo je raja sayati borok Bangladesh ni habpai mani no kuna se khel khailaya kirilaya wana la yang tomoni tabo wana ni Bangladesh bo Bharat ni against kok thai tongo Bharat ni sena pradhan do tabo Bangladesh ni je pradhan upadeshta Mohammad Yunus bobo North East no kok sai to over landlock claimano jeng rei sino thangai o wan thu ye bo borok no asawai bahai ke bokha torkha Bangladesh norok obono wan thu phore di je borok illegal immigrants অনুপ্রবেশ খাইকা যে borok raja sayati hapka oro raja sayati rang rui nai je oro school ni document rui nai ration card khlari rekha oro rang rui aadhar card khlari rekha a borok desh drohi tabukno karar mane porno saklaiye nangsinai einya hanggai Bangladeshi যেভাবে হাবই অর ডকুমেন্টস খাই দংখা অর সরকারি যে সুযোগ সুবিধা নাই দংখা অর সরকারি জনধন যোজনা নি সরকারি বাতা নি সরকারি কবমা পেনশন স্কিমো নাহারি দংখা আবো অ হানি বরক নি মানথাইনো বরক চাউই দংখা আবো আইকা চাউই দংদুইনো তাবো যদি বাংলাদেশ বরম ইশারা খাইগে নরলে বাংলা হানি বরকসে রেখলাই জানাই সালসা নর চিনি বাগै কাম খাইগে ও যে রাইজা সাইডে হাবজার বাংলাদেশ 6 কোটি দংনাই র বাংলাদেশ টোটাল ভারত 600 কোটি হিনি হিসাব দং সুপ্রিম কোর্ট বা যে সরকারি হিসাব আর ও ত্রিপুরাও যদি যে বাংলাদেশি ফাইলে র বাংলাদেশ নো দাই থাকাকে ত্রিপুরাও নং কপ্লাই ইন্দা মানো ভারত নং চপ্রম জাগলাদে ভারত তাবো খামা সিজানাই ভারত সরকারও বারবার ওয়াই ত্রিপুরানি বখাতি সাজানি দংমানি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস সে ত্রিপুরানি যতনি জঞ্জাল কত কিন্তু ভারত সরকার খুঁজু না দংলাই খানায়া তাবো সাইমানানো যদি বাংলাদেশি যে ওরা হাবজাক ওর রাইজা সবাইনি ডকুমেন্ট খাই দংজাক বরক যদি বাংলাদেশ নো দাই থাকাকে তামু নাই অবনি উত্তর ভারত সরকারি ইয়াগো ভারত সরকার বর্ণ হ্যান্ডেল খাইয়া বাগै এনআরসি কক সাও সিএ কক সাও কিন্তু সামু মুংসা কক কरै আবুনি বথাই তাবো মানা থাঙै দङ অবনো ইয়াকার না বাগै ভারত সরকার কোনি ইয়াত্রি দারম ন তাবো যদি আইএসআই বা কেব অবতো গোয়েন্দা বেদেনি বিখাতি রিপোর্ট ছি সৈন্য যদি অবাকে অ্যাটাক খাইকাঙ্কে ভারত বানচিনা বাগै ভারত সরকার টিয়ার দে যে মিসাইল পাকিস্তান তঞ্জাখা বা পাকিস্তান আক্রমণ কাসুনা বাগै নাই নিনি কে কাশ্মীর তনির জাখা ত্রিপুরাও দুরা দবো ন তুবুয়া তং তু মানি বালিজা তং অসংমুং কতর কলাঙ্গিনো নরনো আং তাবো কাইসা অ্যাডভোকেট খরচানি খুগো খনারাই যে বাংলাদেশি বরং ভারত বসুক বাঙি তখা আ বাংলাদেশি বরং রকমুনো বাংলাদেশ বা পাকিস্তান দাই থাকে ভারত যে প্রপানো দেরা ওই মানো অবন হজাক ইন্নানি বাগै পাঁচটা রাজা সাকা যে পাঁচটা রাজানি বিসিংতৈ আবংখা যে তুমুং রাজা সাইটি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস ভারত মানজা খাঙ্কা বরক করাক মাজরা মারনাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবা ফাঁসি মারনাই এবাকে বড় বিজানি এক অনুযায়ী যে আইন করাক খাইলে অ্যামেন্ডমেন্ট খাইলে মাস নামনাই
अबा हाइके जे तय कैसा हाइके जे तब नेशनल जे इनको तब से सिटीजनशिप जे एक्ट तमनि आ एक्ट नि बिसिंगै जदि बखस खबजे के बरताव माजरा आरो कराक मारनाय आमहाय पांचटा आइन साका अ आइन नि बिसिंगति तुमुनो नों जदि बरनो रख्लाइनानि बागै प्रोसेस नाय आगाके एनआरसी फान खायजोंदि सीए फान खायजोंदि भारत न रखा खायने बेजांनाय नायनि सिनि दिनि याफाव एडवोकेट खरचा सुप्रीम कोर्ट केस खायने ताकु खरचानि को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस पीआईएल पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया था कि भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को निकाला जाए। 2017 में ये मैंने पीआईएल फाइल किया था और मेरा मानना है कि इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं और सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। ये यहाँ इनका कागज भी जो कुछ बनवाए थे वो कागज खत्म हो चुका है। इन घुसपैठियों ने फर्जी आधार बनवा लिया है, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है। कुछ ने तो वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा लिया है और ये सारा खेल चल रहा है 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में। ये घुसपैठिए 10 से 15 हज़ार रुपए खर्च करते हैं और इनका 4 से 5 कागज बन जाता है। वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने जनधन खाता खोल लिया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का फायदा ये घुसपैठिए उठा रहे हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा ये घुसपैठिए उठा रहे हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फायदा भी ये घुसपैठिए उठा रहे हैं। तो भारत के लोगों के हिस्से का रोटी, कपड़ा और मकान ये घुसपैठिए ले जा रहे हैं, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा रही है। मैंने दूसरी बात ये कही है कि ये जो 6 करोड़ घुसपैठिए यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। कल को ये भारत के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए की धारा नहीं लगा रही है। ये जो भारत में घुसपैठ हुई है ये बड़े प्लान्ड वे में हुई है, ये कोई ऐसे नहीं हो गई, ये एकाएक नहीं हुई है। ये बाकायदा अपने आप में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठ हुई है और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए जो नई भारतीय न्याय संहिता है इसमें भी वेजिंग वॉर की धारा है। जो पुराना वाला इंडियन पिनल कोड था उसमें भी वेजिंग वॉर की धारा थी। लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार ने, किसी भी जिले की पुलिस ने घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई है। जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए प्रोविजन है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बाकी सभी राज्यों के पास भी अपना अपना कानून है। गुजरात के पास गुस्कोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। ऐसे सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रही है। न महाराष्ट्र में मकोका लग रहा है, न गुजरात में गुस्कोका लग रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, न गुंडा एक्ट लग रहा है। हमने अपनी याचिका में ये भी कहा है, ये घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है और फिर भी यहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में घुसपैठियों की मदद की जा रही है। जो घुसपैठियों के मददगार हैं उनके ऊपर कोई भी राज्य सरकार देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही। कुछ लोग 2-2 हज़ार रुपए में घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं। नगर निगम के दलाल 2,000 रुपए, 3,000 रुपए में घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। तहसील के दलाल 2 से 3 हज़ार रुपए में घुसपैठियों को राशन कार्ड बना के दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको 2 से 3 हज़ार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। स्कूल में बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूलों के दलाल हैं, एजुकेशन माफिया हैं, वो 2 से 3 हज़ार रुपए में उनको फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं और उनका जो है फर्जी मार्कशीट भी बना के दे रहे हैं।
अब ये घुसपैठिए भारत में खाता भी खोल चुके हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, केंद्र की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, राज्य की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। उसका मूल कारण ये है, एक तो हमारा 1946 वाला कानून जो फॉरेनर एक्ट है वो महा घटिया था। हालांकि कानून अभी बदला है, लेकिन जो नया बना है वो भी कोई बहुत अच्छा कानून नहीं बना है। दुनिया के कई देशों में अवैध घुसपैठ करने पे 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। हमारा पुराना वाला 1946 वाला कानून तो वैसे ही महा घटिया था। जो नया बना है, इमिग्रेशन एक्ट आया, उसमें भी इसको जघन्य अपराध घोषित नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कोर्ट से मांग किया है कि जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं भारत में और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इनके खिलाफ 5 धारा लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को कहा जाए। सबसे पहले पूरे देश के सभी जिला के कप्तान, सभी डीजीपी ये सुनिश्चित करें कि घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा। दूसरी हमारी मांग है कि जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो घुसपैठ कर रहे हैं और जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाए। चौथी हमारी मांग है कि घुसपैठियों की मदद करना, इसको देशद्रोह घोषित किया जाए और घुसपैठियों के मददगारों पे देशद्रोह की धारा लगाई जाए। और पांचवी हमारी मांग है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा के, मकोका लगा के, घुसकोका लगा के इनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, इनकी नागरिकता खत्म किया जाए और इनको सुनिश्चित किया जाए कि 1 साल के अंदर आजीवन कारावास मिले। हमारा 1955 वाला जो कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, इतना सड़ा हुआ कानून है, इतना घटिया कानून है कि आज तक किसी भी घुसपैठियों के मदद करने वाले की नागरिकता नहीं गई। न किसी अपराधी की नागरिकता गई, न किसी जासूस की नागरिकता गई, न घुसपैठिए की नागरिकता गई, न घुसपैठियों की मदद करने वालों की नागरिकता गई। जो बॉर्डर पे 2-2 हज़ार रुपए लेके भारत के अंदर घुसपैठियों को एंट्री कराते हैं, उसमें भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो केवल घुसपैठियों पे कार्रवाई करने से घुसपैठ खत्म नहीं होगी जब तक कि घुसपैठियों के मददगारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिस दिन हम भारत में घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ ये 5 धारा लगा देंगे, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट, भारत में सारे घुसपैठिए, लगभग 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। अभी घुसपैठिए इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि घुसपैठियों के मददगारों के मन में कोई कानून का खौफ नहीं है। जिस दिन जो घुसपैठियों की मदद किए, जब उनको लगेगा कि अब वो जेल जाने वाले हैं, वो घुसपैठियों को ढूंढ के यह भारत से भगाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना एनआरसी किए 90% घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर हम बिना ये कानून में बदलाव किए, बिना घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगा के अगर हम सोचते हैं केवल एनआरसी करके हम घुसपैठियों को छांट लेंगे, तो घुसपैठिए छांटना बहुत मुश्किल है। फिर उनको पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डालना बहुत मुश्किल है। कितना हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, क्योंकि 2-4 तो है नहीं, 6 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया के 3 गुना है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठियों ने अपना झुग्गियां नहीं बना लिया है। नदियों के किनारे घुसपैठियों ने झुग्गी बना लिया है, जंगलों में झुग्गी बना लिया है। उत्तराखंड देख लीजिए आप, हिमाचल देख लीजिए, जितने बॉर्डर के स्टेट हैं वहाँ इन्होंने अपने पूरी झुग्गियाँ बना लिया है। एयरपोर्ट के किनारे घुसपैठियों की झुग्गी बन गई है, बंदरगाहों के किनारे घुसपैठियों की झुग्गी बन गई है। जितने हमारे हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं और रेलवे के हमारे जो मेन लाइनें हैं, जो मेन ट्रैक हैं, वहाँ इन्होंने झुग्गी बना लिया है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, वहाँ झुग्गी बना लिया है। तो इनको ढूंढने पे ढूंढ के एनआरसी करना बहुत मुश्किल है। तरीका यही है कि घुसपैठियों को पकड़ा जाए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनको किसने किसने मदद किया, और उनके मददगारों के ऊपर, जो घुसपैठियों के मददगार हैं, चाहे वो लेखपाल है, चाहे पटवारी है, चाहे कोई सिपाही है, चाहे कोई दरोगा है, चाहे कोई पार्षद है, चाहे कोई प्रधान है, चाहे कोई नेता है या कोई दलाल है, चाहे वो तहसील का दलाल है, चाहे थाने का दलाल है या नगर निगम का दलाल है, कोई भी दलाल है, जिन्होंने घुसपैठियों की मदद किया है, बस उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। घुसपैठियों में भगदड़ मच जाएगी। पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान भाग जाएंगे, अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान भाग जाएंगे, रोहिंग्या जो है ये म्यांमार भाग जाएंगे और बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग जाएंगे। यही तरीका है देश को सुरक्षित करने का, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। 9 राज्यों में ऑलरेडी डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है।
पूरे बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उन सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को निर्देश दें कि घुसपैठियों को पकड़े, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें और जो घुसपैठियों के मददगार हैं भारत में उनके खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं और लगा के ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट के अंदर इनको साल भर के अंदर सजा मिले। घुसपैठियों के मददगारों को सजा मिलना शुरू हो जाएगी, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, नहीं तो केवल हम एनआरसी के भरोसे बैठे रहेंगे, एनआरसी कभी सफल नहीं हो पाएगी। खाबांनि ताहते बुकुकसं अबंग सुप्रीम कोर्ट नि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बांग्ला बाइके अश्विनी उपाध्याय नाय अश्विनी उपाध्याय सराय का साइखना का भारत हाव इलिगेल इमाइग्रेंट्स है के राज्य से हाबनाय घुसपैठिया नो हिंदी बाय आब्रम नि होते याक नि याकांना के ताम खलायनानै अ पास्ता केराव सबने नर बाहायनांजा तुमुन बिरकक नांगो तला कमेन्ट्स खादि शेयर खादि ताई जतन कोकरना नांगै भारत हानि बसा हंगाकै भारत सरकार नो बा सरकार सिनि साया खायवै नों आंबो जदि इलिगेल इमाइग्रेंट्स दुगै दंगो खांके बरनो थानाव मा साइनाय इनि हंगाकै केस फाइल खालायमा आरनाय बखा कतर मांसिनाय भारत हानो मथाना बागै ताई नों आंनि थिनां निनि बसकांनि आसाय सुनो मथांनानि बागै अचबा राजनीति नेतारनि सिमिया टंकसं बरनि सि आन्दोलन उनथायनि बासाखा ताई कायसा कखा जे बरनो जे इलिगेल इमाइग्रेंट्स रंनि बागैनाय गवमा केरम तमन अब खायासा जरातै जों यगनानि नायखौनो लामा करै अबाहाय रनो कासुना बागै निनि बरं मन्त्री र बहायो ताबुक जेमन पेकिसराव फाइबेनि 150 जना बरनो फाइबेनि रैखराय मानिया नरै मानिया अमाहाय केबेल हंगांके बाहायके इंलायनाय टंकसं बर रंनि थानिव कुनो आसना दं कक नेता मन्त्री साना पुलिसनि कक कट सावै थाङै मन्त्री मानि पाके सामुंजे खायनि हंगांके बाहायके इंलायनाय लुकरगबनो जवाब रेदि नरनि बखाव थान्ना हादि इयाके बारनो रखा खालिना बागैनाय नों आं बासायाखले बासि मांनायगलाखा असक कचारैनो तिनिनि अरिपुरिया फारगासेबो जतना हामबाय पेनसि पासे दरनाय बागै ताई उलनि बखा नासि दंनो बागै